प्यारे साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। बहुत दिनों बाद गलबात कर रहे हैं। बाबा साहब की जयंती का समा होने करके बहुत सारिया सभावां दे विच जाके उन्हें अपने लोकां नाल गलबात करदियां, पेपर का काम करदियां ते होर जिम्मेवारियां नूं निभाउंदियां काफ़ी समा बीत गया। गलबात नहीं हो सकी। महसूस करता रहा बहुत सारा साहित्य, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारिया नवीं गल्लां पूरे देश दे विचों, पूरे दुनिया दे विचों बुद्धिमान लोकां ने जां साडे समाज दे बहुत सियाणे लोकां ने जो कहा, जो दस्या, उसनूं सुनदा रहा हाँ और कई बार तुहाडे तक पहुंचदा भी करदा रहा। बोलण नूं मन नहीं कीता कई दिन, और इस समय दौरान ज्यादा गलबात च अगर कोई करदा रहा है तो साडा छोटा वीर बहादुर करदा रहा है, या कदी कदी दूसरे साथी भी बोलते रहे हैं। जो भी होया, जिस तरह भी होया, ये साडे सामने है। मैं अज 2 अप्रैल की घटना बारे, जो भारत के इतिहास की महान घटना है, उहदे बारे जिक्र करना चाहता। 2 अप्रैल तो लगभग 48 घंटे पहला मैं सोच रहा सी, अजे मेरे मन च यह तौखला सी कि ये बंद का सद्दा किसने दिता है। जिस तरह बाकी लोगों को नहीं पता सी, इस तरह मैनू भी ज्यादा नहीं पता सी, पर मैं मन तो यह चाहता सी कि 2 तरीक नूं जो होने वाला है उहदी कितों ना कितों तंद फड़ी जाए और देखा जाए कि आखिर यह गल कित्थों उठी है। तो 2 प्रश्न मेरे सामने खड़े सी। एक तो यह कि हो सकता है कि दलित समूहों ने, दलित बहुजन ने, या उन्होंने विचों किसी गुट ने अजिही खबर देती जो फिर रुकी नहीं, जानी बंद का सद्दा दिता और उस सद्दे दे उत्ते पूरी दुनिया दे विचों, भारत दे विचों जागरूक लोकां ने उहदे ते पहरा दिता और लगातार पहरा दिता। दूसरी जिहड़ी चीज मेरे दिमाग च छाई रही वो सी कि हो सकता है ये जिहड़ा बंद का सद्दा है ये हाकम जातियां वल्लियों होवे, क्योंकि मैं कदे हाकम जातियां नूं अख तो ओले नहीं करता। किसी भी घटना दे विच मैं उसनूं घटना तो अलग करके नहीं वेखदा, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय के इतिहास नूं पढ़िया है, जानिया है, समझिया है, लिखिया है, बोलिया है। और ये गल मेरे समझ पक्के तौर पर है कि भारत अंदर वापरदी किसी भी
ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਕਮ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲਿਤ ਬਹੁਜਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਜਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਦੋਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ। ਪਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬਹੁਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ 'ਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਬਹੁਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਾਤੀਆਂ ਦੰਗ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਗਈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 60 ਸਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੁਰਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੌੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇਖਿਆ, ਤਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਜਾਣੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਰਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ,
वो पीड़ा है, वो अत्याचार है, वो लगातार जुल्म है, वो अपमान है ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मेरे भाइयों, मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मुझे पूरे देश से बात करनी है। जब मुझे देश से बात करनी है तो हिंदी में बोलना था मुझे। अब मैं थोड़ा 10 मिनट पंजाबी में बोल गया, और अब इसको हिंदी में कैसे इसको दोबारा हिंदी रूप दिया जाएगा ये मुझे अभी नहीं पता, मगर मैं एकदम दूसरी जगह हिंदी में बोलने लगा हूं ताकि पूरे देश के लोग मेरी बात समझ सकें, या मैं जो कह रहा हूं उसको सुन सकें। तो मैं जो पहले बोला उसको दोहराता रहूंगा, इसलिए कि मेरी बात जो पंजाबी में होगी या वो हिंदी में भी आ जाए। तो मैंने कहा कि 2 अप्रैल के 2 पहलू हैं, एक दलित बहुजन का पहलू है और दूसरा हाकम जातियों का पहलू है। और मैंने ये भी कहा कि पूरे भारत में आज तक 60 साल में कभी भारत बंद नहीं हुआ। अगर बंद हुआ तो कहीं शहरों में थोड़ा हुआ, कुछ लोगों ने किया और कुछ ने नहीं किया, मगर ये पहली बार है कि कन्याकुमारी से लेकर पंजाब से आगे तक और बंगाल तक, गुजरात तक पूरा देश बंद था उस दिन। और जितनी आगजनी की घटनाएं हम देख रहे थे, या मारपीट देख रहे थे, गोली चलती देख रहे थे, वो हमारे लोगों का काम नहीं था। ये साबित हो गया कि वो हमारे लोगों ने नहीं किया, वो या तो पुलिस ने किया, मैं इसे हिंदू पुलिस कहता हूं, ऐसा काम करने वाले लोग हैं जो मैं उसे हिंदू पुलिस कहता हूं, या पुलिस में आरएसएस के या बीजेपी के आदमी जो शामिल हैं वो करते हैं ऐसा काम। उनको कहने की जरूरत नहीं होती, उस पुलिस के आदमी को कहने की जरूरत नहीं, वो खुद करता है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। और जब गोली चलती है, कुछ बच्चे मारे जाते हैं, गाड़ियां फूकती हैं, आग लगती है, तो आप एक ध्यान दो, एक बात पर ध्यान दो। गोलियां चलने की बात भी साबित हो चुकी है कि वो बीजेपी आरएसएस के आदमी ने गोलियां चलाई, वो पकड़ा भी गया। दूसरी बात, सड़कों पर आग लगी है, दलितों ने, पछड़ों ने, जहां उनके साथ जो भी लोग थे, उन्होंने कितना हंगामा किया, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जो मेरी समझ में आता है वो बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि पूरे भारत में दलित बहुजन के इस सद्दे में, भारत बंद में, कहीं भी किसी हिंदू की या दूसरे धर्म के लोगों की कोई दुकान, मकान या फैक्ट्री या उसकी जायदाद जलती नजर नहीं आई। अगर घर में कहीं या कहीं मंदिर में, जैसे आरएसएस वाले करते हैं, मस्जिद में या गुरुद्वारे में या किसी दुकान में, फैक्ट्री में दलित बहुजन के
नजरिए से कोई आग जनी नहीं हुई, तो गाड़ियों को आग लगाने का काम भी ज्यादा उन लोगों ने किया होगा जो लोग ये चाहते थे कि इससे बड़ा हंगामा हो जाए और दलित बहुजन को पहले हल्ले में ही इतना बदनाम कर दिया जाए ताकि उस पर दमन किया जा सके। मगर ऐसा हुआ नहीं, पूरा देश में हुआ नहीं। ये मैं मानता हूं कि हजारों लोगों पर केस बनाए गए। हम जानते हैं कि ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले या दूसरे गुंडे जो लोग हैं, बहुत गुंडे पूरे देश में घूम रहे हैं। ये गुंडों से भर गया देश, उन पर केस नहीं चलता, ना बनता है न चलता है, ना कोई बढ़ने देता है और ना चलने देता है। अगर बन जाए, चल जाए तो वो आज नहीं तो कल आराम से बरी हो जाता है। और ये तो हमारे सामने हो रहा है। कितने भी कत्ल कर दे, कितने भी बच्चों को मार दे, औरतों को मार दे, घर जला दे, और कितने भी बम धमाके कर ले, वो एक दिन बरी हो जाता है। और मैंने बहुत बार कहा है कि जब देश का शासक, देश का प्रशासक, देश का पुलिस वाला, देश का वकील और देश का जज, शासक, प्रशासक, पुलिस, वकील और जज जब एक कतार में खड़े हो जाएं तो वो बदी को, बुराई को अच्छाई में बदल सकते हैं और अच्छाई को बदी में, बुराई में बदल सकते हैं। ये एक लाइन होती है, ताकत की लाइन होती है, और यही ताकत की लाइन देश को बर्बाद करती है, और यही ताकत की लाइन देश को प्रगति में लेकर जाती है। शासक, प्रशासक, पुलिस, वकील और जज, ये एक बहुत बड़ी कतार है। अगर देश बुराई के लिए इस लाइन को इस्तेमाल करता है तो बर्बादी के रास्ते पर जाता है। अगर यही लाइन देश को आबादी देने के लिए, उसको प्रगति देने के लिए, तरक्की देने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वही देश जो नर्क में रहता है वो स्वर्ग पैदा कर लेता है, स्वर्ग पैदा कर लेता है। और ये कभी मत भूलना कि इससे बड़ा कोई फार्मूला नहीं है कि नेता, दफ्तर में बैठा प्रशासक और पुलिस का अधिकारी या पुलिस वाला, वकील और जज, यही वो आदमी है जो देश की तकदीर को बुरा और अच्छा बनाते हैं, बर्बाद करते हैं या फिर प्रगति पर ले जाते हैं। तो हम इस बात पर खड़े थे कि दलित बहुजनों ने पूरे देश को बंद किया, मगर तबाही के रास्ते पर वो नहीं चले। अगर हिंसा हुई, आगजनी हुई, तो उसके प्रमाण भी सामने हैं, गोली चलाने वाले भी सामने हैं, गाड़ियों को आग लगाने वाले, तोड़ने वाले भी सामने हैं। ये सब कुछ दिख रहा है। इसमें कोई आदमी कहे कि मुझे लगता नहीं, अरे जो दिखता देख नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते, तो ऐसी बुद्धि को समझ भी कैसे लगेगी।
अभी अभी 5-10 दिन पहले की बात है, किसी प्रदेश में, ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या ऐसे किसी सूबे में, बड़े सूबे में, यही सूबे, तो एक डीजीपी, शायद वो इंटेलिजेंस के होंगे या क्राइम ब्रांच के होंगे, या उनके अधिकारी थे, जो उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि 2 लाख तलवारें मंगवाई गई और कुछ आदमी इसमें पकड़ भी लिए गए। 2 लाख तलवारें मंगाई गई। ये 2 के पहले की बात है। इस बात से मुझे ये शंका होती है कि जिन लोगों ने, अगर मैं ये स्थायी तौर पर पूरे यकीन से नहीं कह रहा, मगर मैं शंका जाहिर कर रहा हूं कि जैसे मोहन भागवत जो आरएसएस के मुखिया, उसने कहा कि हमारी सेना 3 दिन में तैयार हो सकती है। ये बयान आज से 2 महीने पहले का है, 2-2.5 महीने पहले का बयान है। और एक मंत्री कहता कि हम संविधान बदलने आए हैं। और दूसरा एक बीजेपी का आदमी वो कहता है कि हम मनुस्मृति दोबारा लिखकर जल्दी उसको बाहर लाने वाले हैं। और कोई कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई ये कहता कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और संविधान बदल दिया जाएगा। यानी ये सारी चीज सामने है। मैं इसी प्रसंग में एक बात ये भी जोड़ दी है मैंने कि 2 लाख तलवारों की बात हुई है कि किसी संगठन ने 2 लाख तलवारें मंगवाई और वो पकड़े गए। वो हिंदू संगठन है कोई, ऐसी बात उसमें बताई गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 का बंद हो सकता है, 2 अप्रैल का बंद हो सकता है कि दलित बहुजन के किसी गुट का ना हो। ये तो उनमें, उनके दिल में जो अत्याचार की, यानी ये गुस्सा था अत्याचार के खिलाफ, वो फूटा। तो मैं दूसरी तरफ देखता हूं कि इस देश की हाकिम जातियों को कभी भी आज तक ये विश्वास नहीं हुआ कि भारत का दबया कुचला आदमी, दलित बहुजन, जिसको हजारों साल से सताया गया, अपमानित किया गया, जिसकी औरत को, बच्ची को अपमानित किया गया, जिसको जिसका घर भी पहले तो बनने नहीं दिया, अगर बन गया तो उसको जला दिया गया, वो लोग कभी भी इतना बड़ा संगठन बनाकर गांव से लेकर शहर तक उठ खड़े होंगे पूरे देश में, ऐसा कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर ये जो हाकिम जातियां हैं, अगर इनमें से किसी की ये सोच 2 अप्रैल की बनी हो और उसने ये ऐलान किया हो कि 2 को भारत बंद करेंगे दलित लोग, पहले तो दलित लोग ही चलता था, हम दलित बहुजन कहते हैं, वो दलित कहते थे, तो उनको हो सकता है कि ये महसूस हो कि कुछ लोग बाहर निकलेंगे, भारत में कुछ लोग बाहर निकलेंगे, हंगामा करेंगे, और हंगामा करने वाले लोगों को सबक सिखाया जाएगा, और इतना अच्छा सबक सिखाया जाएगा
कि वे कभी भी बाहर आने की बाद में हिम्मत नहीं करेंगे। मैं इसे 2 लाख तलवारों से जोड़कर भी देखता हूं। मैं इस बात को 3 दिन की वो आर्मी के साथ भी जोड़कर देखता हूं जो भागवत जी ने, यानी आरएसएस के मुखी ने जो कहा, मैं उससे भी जोड़ता हूं इसे। और दलित जो भारत का दलित है, अभी तो मुसलमान उसमें शामिल हो गया, पिछड़ा भी शामिल हो गया बहुत बड़े पैमाने पे। तो ये दलित बहुजन है जो, यही आदमी संविधान लागू करने में और संविधान को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। आज का सबसे बड़ा आंदोलन क्या है भारत का? कि भारत को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और आदमी को बचाना है, सुरक्षित करना, औरत को बचाना है। यह सबसे बड़ा आंदोलन है आज का। भारत को बचाना, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना और अत्याचार के शिकार लोगों को बचाना, ये सबसे बड़ा आंदोलन है पूरे भारत का आज का। और एकदम सही 100% सटीक आंदोलन है ये, जो जिसकी अगुवाई दलित कर रहे हैं और बाकी लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। अब इसको रोकने का तरीका अगर ऊपर बैठे लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो मुझे ऐसा लगा कि 2 तारीख को हो सकता है ऐसी कोई चीज ये षड्यंत्र के तौर पर बनाई गई हो कि 2 को एक बंद का जो सद्दा दिया जाए और उससे लोग जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद, क्योंकि सोशल मीडिया केवल लोगों के हित में नहीं चलता, इस मीडिया पर हजारों लोग जो हैं वो बहुजन के खिलाफ सरगर्म रहते हैं और वो हाकम जाति के लोग होते हैं। ये उनका होता है, सभी फेक आईडी हो या कुछ भी हो। तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि कहीं ये ऐसी शरारत तो नहीं थी कि 2 तारीख को लोगों को, दलितों को बाहर निकाला जाए। और हो सकता है ये भी सोच हो किसी की कि इसको मुसलमान भी समर्थन देंगे तो मुसलमान भी बाहर निकलेंगे। अब भारत में अगर मुसलमान और दलित इकट्ठे हो रहे हैं तो भारत का संविधान भी सुरक्षित है, लोकतंत्र भी सुरक्षित है और भारत खुद भी सुरक्षित है। तो इन हालतों में जब दलित और मुसलमान पूरे भारत में एकजुट हो रहे हैं और दोनों अत्याचारों का शिकार हैं लगातार, तो उनको ये सद्दा देना कि भारत बंद होगा 2 अप्रैल को, इसका मतलब है कि दोनों ताकतें बाहर निकलेंगी। ज्यादा नहीं निकलेंगी, थोड़ी निकलेंगी, ये भी उनका विश्वास हो सकता है। ऐसे लोगों का जो शरारत करते हैं, ये उनका विश्वास होना कि ये ज्यादा नहीं निकलेंगे, ये उनका सोचना एकदम सही था। क्योंकि दलित बहुजन ने आज तक कभी सड़कों पर आकर इतना बड़ा हंगामा कभी नहीं किया। हंगामा ना कहो, प्रदर्शन कहो, हंगामा ना कहें, हंगामा शब्द गलत है, तो मैं इसको प्रदर्शन, ताकत का प्रदर्शन कहता हूं, गुस्से का प्रदर्शन कहता हूं, रोष का। ये ऐसा सोचा जा सकता था, किसी ने सोचा भी हो सकता है कि जब ये बाहर आएंगे तो ज्यादा गिनती में नहीं आएंगे, क्योंकि आज तक ये नहीं आए। अब जब ये आएंगे
तो देश की सत्ता, देश की पुलिस जैसी भूमिका आज तक निभाई है इसने, पिछले 60-70 वर्ष में जैसी भूमिका निभाई है गुजरात में, दिल्ली में, पंजाब में, कहीं भी, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, यहां भी महाराष्ट्र में, तो यहां भी इनकी भूमिका हमने देखी है, सुनी है और हमने पढ़ी है। जितना भी देख सके आंखों से वो भी देखा है हमने। तो इनकी भूमिका समाज के हित में नहीं कभी रही। बस जो हाकिम जमात चाहे कांग्रेस के रूप में रही, चाहे बीजेपी के रूप में रही, इसकी भूमिका वो ही रही। तो 2 तारीख को अगर लोग निकलते, ऐसा सोचा गया होगा, अगर ऐसा सोचा गया तो वो 2 लाख तलवारें और 3 दिन की आर्मी, ये गुंडा ब्रिगेड पूरे देश में फैले हुए सारे, हो सकता है कि ये पूरी प्लान्ड या योजनाबद्ध तरीके से उनको घेर लेते। और ऐसा भी सोचा हो सकता है कि इस आंदोलन को चलाने वाले लोग जो होंगे वही होंगे जो पिछले 30-40 वर्ष से समाज को जागरूक कर रहे हैं, वही लोग इनकी अगुवाई करेंगे सड़क पर आकर। मुसलमान भी आएगा और दलित भी आएगा, मगर ये मुकाबले में इतना कमजोर होगा कि इसका शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा। और एक बार ये शिकार हो गया तो फिर नहीं उठेगा। और इसमें मैं दूसरी बात भी जोड़ लेना चाहता हूं कि 2019 का भारत का जो चुनाव है, ये भारत का सबसे अहम चुनाव है। यहां मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देश या तो हार जाएगा या जीत जाएगा। मैं देश की बात कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2019 में या तो ये युद्ध चल रहा है इस देश के आम लोगों का और खास लोगों का, मूलवासी का और दमनकारियों का, ये युद्ध चल रहा है। और युद्ध का ये अंतिम पड़ाव है 2019। उस पड़ाव में या तो भारत हार जाएगा या भारत जीत जाएगा। ये बात पत्थर पर लकीर है। अब जिन लोगों ने 4 साल में देश को कुछ नहीं दिया, लूटने के बगैर, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को खजाना लौटाने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, और जगह जगह बलात्कार, चाहे वो 2 साल की बच्ची हो, चाहे वो 70-80 साल की बूढ़ी हो, ऐसे अंजाम पूरे देश में देख रहे हैं हम। अब तो मंदिर को भी उसके लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गया है। और बहुत बड़ी योजना के अधीन ये बुरे काम होते हैं। लूटने वाले हजारों करोड़ रुपया लेकर देश से भाग रहे हैं। और पूरे देश में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, ये पेट्रोल, डीजल, खाने का सामान, दवाई इतनी महंगी है कि आम आदमी तो इसमें बेबस हो गया है। और जो मिडिल क्लास आदमी है
वो बहुत बुरी तरह फंस गया है। उसकी आदतें ज्यादा खाने की, ज्यादा पहनने की, ज्यादा वस्तु इकट्ठे करने की, ज्यादा बड़ा घर बनाने की, जो उसकी मनोवृत्ति है, उसी ने उसको फंसा दिया है। वो बुरी तरह फंस गया है। और जो 30-40 करोड़ आदमी इस देश का केवल रोटी पर निर्भर है, उसको कपड़ा भी अच्छा नहीं मिलता, घर तो उसके पास है ही नहीं। और वो रोटी कल भी उसी हालत में खाता था, आज भी उसी हालत में। मिल गई तो खा ली, नहीं तो नहीं। कहीं से झूठ मिल गई तो खा ली, नहीं तो नहीं। या पूरे परिवार के साथ काम किया और फिर उसका मुआवजा जितना मिला उससे रोटी चल गई। वो लोग सभी के सभी जो इस देश में पीड़ित हैं, हर तरीके से पीड़ित हैं, और उन लोगों के लिए जागरूकता की मुहिम में जितने लोग लगे हुए हैं पूरे देश में, खास करके दलित बहुजन के आदमी और मुसलमान, कुछ सिख भी हैं, ज्यादा नहीं है मगर हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े सिख भी काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जिस आदमी ने या जिस गुट ने या जिस समाज ने या जिस हाकम जाति ने ये प्लान किया हो कि 2 तारीख को बंदा ये पूरे देश को बंद करने का सद्दा दिया जाए, तो यही लोग बाहर आएंगे। और जो जागरूक लोग हैं वही बाहर आएंगे, क्योंकि तकलीफ उनको पता है क्या होती है। जो जागरूक नहीं है वो तो पशु के समान होता है। उसको नहीं पता कि जिंदगी क्या होती है, उसको नहीं पता आजादी और गुलामी क्या होती है, उसे नहीं पता कि रोटी कपड़ा मकान क्या होता है, उसे नहीं पता कि मान सम्मान या बराबरी क्या होती है, उसे नहीं पता कि वो इज्जत से कैसे जिए, उसको नहीं पता कि जिंदगी का सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। जिसको पता है वो ही बाहर आएगा और उसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि फिर कभी वो उठने के लायक नहीं रहेगा। ये मुझे लगता है। जब भागवत ने ये कहा कि 3 दिन में आर्मी तैयार हो जाएगी, 3-4 दिन में, और फिर बाद में ये मैंने रिपोर्ट जो सुनी कि 2 लाख तलवारें मंगाई गई। मैं जानता हूं कि हथियार तो पहले ही बहुत है, इन लोगों के पास हथियार तो रोज लहराते हैं। ये लाठी तो दिखाते हैं, ये हाथी के दांत देखने को लाठी है, मगर जो छुपा हुआ वो भी हमें पता है। हम देखते हैं कि गुजरात में वो कहां से आते हैं, दिल्ली में कहां से आते हैं, मुंबई में कहां से आते हैं, यूपी में अयोध्या में कहां से आते हैं, बिहार से कहां से निकलते हैं, महाराष्ट्र से कैसे निकलते हैं, और पंजाब में भी कैसे बाहर आते हैं। ये सभी देखते हैं लोग, हम भी देखते हैं। तो इतना हथियार, और अगर भारत के लाइसेंस, जो जितने लाइसेंस सरकारी तौर पर दिए गए हैं, अगर उनका भी सर्वेक्षण किया जाए, उसका भी सर्वेक्षण किया जाए, तो 90% हथियार जो है वो ऊंची जाति के लोगों के पास है। 90%। कहीं से भी आप सर्वे शुरू कर दो, पंजाब से शुरू कर लो या बाहर से शुरू कर लो, यही पाओगे।
तो मुझे लगता है कि 2 तारीख को अगर कोई बुरी सोच ऐसी हो जिसका मकसद 2 अप्रैल को दलित बहुजन को, दलितों को और खास करके मुसलमानों को भी बाहर निकालने का हो, तो देश में बहुत बुरे हालत पैदा हो जाते, ऐसा कहा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही था, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी संभावना कभी खत्म नहीं होती, और जो देश के, समाज के, जातियों के, नस्लों के हालात होते हैं वो ही समझाते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि 2 अप्रैल को मान लो कि दलित बहुजन ने ही ये सद्दा दिया। कहां से दिया, किसने दिया, अभी तक तो मुझे भी नहीं पता चला। मैंने 2 दिन पहले तक, 2 अप्रैल से 2 दिन पहले तक भी अपील की कि कम से कम मुझे कोई ऐसा संकेत मिल जाए कि कहां से ये आया है। तो मेरा कहने का, वो पूछने का मतलब, अपील करने का मतलब यही था कि कहीं हम आग में, यानी जंगल की आग में घिर ना जाए। ये मेरे दिमाग में था। ये 2 लाख तलवारें और 3 दिन में आर्मी खड़े हो जाना, संविधान को बदलने की बात और बलात्कारों की बात, हर जगह पर गुंडागर्दी, शरेआम गुंडागर्दी, उसको भी सुरक्षित करना, और सभी एमएलए एमपी इसी काम में लगे नजर आते हैं। तो मुझे लगता था कि कहीं ये बहुजन के लोग जंगल की आग में फंस ना जाएं। जंगल की आग नहीं देखती कि कौन शेर है, कौन गीदड़ है, कौन चिड़ी है और कौन बड़ा जानवर, हाथी, घोड़ा है, कोई नहीं देखती। मगर जब 2 तारीख से पहले मुझे लगा कि चारों तरफ हमारे लोगों के दिलों में जो हजारों सालों की गुस्से की आग है वो जलने लगी है, वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। मुझे देख, क्योंकि मेरा 40 वर्ष से पूरे देश के लोगों के साथ संपर्क रहता है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जाग रहे हैं लोग, ये सहन नहीं कर रहे, ये बर्दाश्त करने वाले अब नहीं दिख रहे। तो मैंने खुद सोचा कि मुझे भी इसमें शामिल होना है, क्योंकि मुझे अपने देश की और संविधान की, लोकतंत्र की बहुत चिंता है। मैं जानता हूं कि देश भारत, और भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र और गणराज्य रूप ये कैसे बना, मैं पोटा पोटा जानता हूं, पूरा इतिहास जानता हूं। और ज्योतिराव फूले से लेकर बाबा साहब तक कितनी भयानक लड़ाई लड़ी गई और कैसे कैसे मौत पीछे पीछे चलती रही। ये तो अंग्रेजों का राज होने के कारण आगे बढ़ सके, हमारे पुरखे आगे बढ़ सके, वरना वो तो 2 कदम भी ना उठा सकते, रास्ते में ही मारे जाते। तो उन लोगों ने 100 साल में जितना बड़ा संघर्ष किया और उसके पीछे जो संघर्ष हुआ वो
पूरे का पूरा इतिहास मुझे जुबानी याद है। एक एक सदी का इतिहास मुझे जुबानी याद है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जिस भारत को बनाने के लिए, जिस संविधान और लोकतंत्र और गणराज्य को बनाने के लिए हमारे पुरखों ने 2000 साल लंबी एक तो लड़ाई लड़ी, अत्याचार सहन किए, गुलामी झेली और जानवरों की तरह जीवन जिया, वो मुझे याद है। तो मुझे लगा कि मुझे, अगर मेरे देश के लोग, मेरे दलित बहुजन के लोग अगर बाहर आते हैं तो मुझे अंदर नहीं रुकना है, मुझे उनके साथ ही खड़े होना है। तो 2 दिन पहले ये फैसला मैंने किया। मैंने कुछ बहन भाइयों से बात भी की। मुझे लगा कि इनके दिल में चारों तरफ गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। और ये पहली बार था कि भारत के दलित बहुजन में इतना गुस्सा सामने आया। और 2 तारीख आ गई, 2 अप्रैल आ गई, तो गाड़ियों में बैठकर, मोटरसाइकिल पर, बसों में, जैसे भी किसी को साधन मिला वो लेकर शहर की ओर चला। और जब हमने 10 बजे के करीब देखा तो हजारों हजारों लोग, हजारों औरतें, बच्चे, नौजवान बाबा साहब का, संविधान का, लोकतंत्र का गान गाते हुए, जस करते हुए सड़कों पर आए। हमने अपने लोगों को, जो मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैंने जब अपने लोगों के साथ चलना शुरू किया, उससे पहले मैंने अपने लोगों को कहा कि ये देश हमारा है, ये लोग हमारे हैं, हमारी इनसे दुश्मनी नहीं है। जो देश के साथ, संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ, गणराज्य के साथ, देश के बहुजन के साथ दुश्मनी करता है, हमारी लड़ाई उससे है। और वो लड़ाई हमारी हिंसक नहीं है, विचारधारक लड़ाई है। हम अपने लोगों को परेशान नहीं करेंगे। और कोई आदमी किसी की दुकान को, किसी के मकान को कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमने अपनी लड़ाई जीतनी है और हमें आगे जाना है, हिंसा नहीं करनी है हमने, और हिंसा होने भी नहीं देनी। ये मैंने अपने भाषण में भी कहा। तो मैंने उनको समझाया कि ये देश हमारा है, ये लोग हमारे हैं, हमें सभी ने रल मिलकर यहीं रहना है। हमारा मकसद भाईचारा जो तोड़ा गया है जातिवाद से, वर्णवाद से, उसी भाईचारे को दोबारा, यानी जो जो जातिवाद से बनाया गया उसको तोड़ना है। और हमें एक बराबर आदमी पैदा करना है। ये जहर जो हमारे बीच बोई गई है, इस जहर को निकालना है। तो हम चले। और मैं खुद हैरान था कि जैसे ही हम निकले, जैसे ही हम आगे बढ़े, तो हमारे पीछे और आगे, हमारे पीछे भी और हमारे आगे भी हजारों हजारों लोग, पता नहीं कौन कौन से गांव में से चले वो सड़कों पर आ गए थे। गूंज रहे थे, वो
वो दर्द बोल रहे, मनुस्मृति मुर्दाबाद कर रहे थे, वो जातिवाद की मुर्दाबाद बोल रहे थे। वो उनका निशाना जातिवाद और मनुवाद था। और जो गुंडागर्दी हो रही थी पूरे पिछले बहुत लंबे अरसे से, मैं नहीं कहता कि बीजेपी के समय की बात है ये कांग्रेस हो बीजेपी कोई भी था, गुंडागर्दी तो हमारे साथ वही से चली आ रही है, 1947 से भी पहले से चली आ रही है। और संविधान बनने के बाद भी रुकी नहीं, ज्यादा हुई है। तो हम उस गुंडागर्दी के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ बोल रहे थे और देश के संविधान के, लोकतंत्र के, गणराज्य के जस के नारे लगा रहे थे। और पूरे देश में ऐसा हो रहा था। पूरे पंजाब में कहीं भी कोई आगजनी नहीं हुई, पूरे पंजाब में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जैसे ही, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जैसे मुझे लगा कि हमारे कारण कोई गाड़ियों को, कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, तो मैंने खुद उसको गाइड किया, लोगों को एक तरफ किया, तो गाड़ियों को, लोगों को जिधर भी जाना जाने दिया। मैंने खुद ये काम किया। और मैं अकेला नहीं था, ऐसे लाखों लोग थे पूरे देश में जो अपने समाज को गाइड कर रहे थे। ये 2 तारीख का वाकया मैंने पंजाबी में जो बोला है उसमें यही कहा है कि मुझे लगता था, कि मुझे शक था कि कहीं हमारे साथ ये षड्यंत्र ना हो रहा हो। हमारा विरोधी जो सदियों से विरोधी है, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो विरोधी है हजारों साल से विरोधी है, हजारों साल से उसने दुश्मनी की हमारे साथ, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर हमारे साथ दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मनी की है। और 2000 साल से हम इसी कारण गुलाम रहे, जाति के कारण, वर्ण के कारण, इसी नफरत के कारण हम गुलाम रहे। मगर लास्ट जो अंग्रेजों की गुलामी है, उसमें से हमारे पुरखों ने जो जंग लड़ी, जो युद्ध लड़ा, उसमें से निकला भारत। यह पहली बार हुआ कि भारत उसमें से निकला। और उसी में से निकला संविधान, उसी में से निकला लोकतंत्र, उसी में से निकला गणराज्य, और उसी में से हमारी सुरक्षा निकली। ऊंची जातियों से दलित की, बहुजन की, औरत की सुरक्षा निकली उसी संघर्ष से। और उसी में से हमको पढ़ने का मौका मिला। 2200 साल बाद हमें पढ़ने का मौका मिला। उसी कारण हम पढ़ लिख कर नौकरी लगने लगे, तो हमारी विद्या भी छीनने का यत्न हुआ, पूरा जोरदार यत्न हुआ। और हमारी नौकरी छीनने का हर तरीके से बहुत बड़ा यत्न हुआ। हमारे पर थोड़ा चला, हमारी विद्या पर थोड़ा चला, हमारे अधिकार पर थोड़ा चला, हमारी नौकरी पर थोड़ा चला। किसी ने जात को तोड़ने का, खत्म करने का यत्न नहीं किया, मगर दलित बहुजन के अधिकारों को खत्म करने का हर उपराला किया। चाहे वो कांग्रेस का राज था, चाहे वो बीजेपी का राज है। और मैं कम्युनिस्टों में को भी इसमें शामिल करता हूं। मैं कम्युनिस्ट रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं कम्युनिस्ट धारा को भी अच्छी तरह जानता हूं। जब आरएसएस बनी 1925 में, तभी कम्युनिस्ट पार्टी बनी और तभी श्रोमणी कमेटी बनी।
ये लोगों को पता नहीं है कि जब 1925 में आरएसएस बनी, जब तभी 1925 में सीपीआई बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और तभी श्रोमणी कमेटी बनाई गई। ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो सबसे पहले हमला जो संविधान पर हुआ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। मेरा ख्याल ये लोग जानते नहीं कि संविधान पर सबसे पहला हमला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, और उसने 2 गुप्त पत्र लिखे हमारे अधिकारों के खिलाफ, पछड़ी जाति के खिलाफ, दलित जाति के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ 2 पत्र, गुप्त पत्र लिखे उस आदमी ने। अब मैं जो कह रहा हूं ये है कि 2200 साल का अत्याचार और फिर 26 जनवरी 1950 के बाद जब हमें अधिकार मिले उठने के लिए, बराबर होने के लिए, तो काबज जातियों ने हजारों दलीलों को बनाकर हमारे अधिकारों पर हमला किया और लगभग 1992 तक हमारे अधिकारों का कचरा कर दिया। इसमें मुसलमान भी पछड़ गया, हम फिर से पछड़ गए, और पिछड़ी जाति को तो पूरी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण पिछड़ी जाति पूरी तरह पछड़ गई। अब वो 22 साल की घटना, 2200 साल की घटना जो अत्याचारों की घटना है, वो भी लोगों को समझ आने लगा। 26 जनवरी 1950 के बाद जैसे हथौड़ा चला हमारे पर, कुहाड़ा कहो या हथौड़ा कहो, हमारे अधिकारों पर चला, उसका दर्द कभी कभी न्यायपालिका की भूमिका देखते हैं हम तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो हम इसका कारण भी समझते हैं। तो ये दर्द बन गया, पूरे देश में एक दर्द बन गया। यही दर्द था जो 2 अप्रैल को पूरे भारत ने देखा। पूरे देश का दलित बहुजन सड़कों पर आया, कन्याकुमारी से लेकर पंजाब तक, हिमाचल तक वो बाहर आया सड़कों पर, और उसने ये बताया कि अब अत्याचार बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो भारत के बहुजन ने देश के हाकिमों को, हाकिम जातियों को एक संदेश दिया 2 अप्रैल को कि हमारे अधिकार मत छीनो, हमारे संविधान को कचरा मत बनाओ, लोकतंत्र का कचरा मत करो, गणराज की व्यवस्था का कचरा मत करो, और भारत को तोड़ने का यत्न मत करो। बहुत सारे लोग सोचते हैं, कहते हैं हमें कि हम लोग देश को तोड़ रहे हैं। अरे ये अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति देश तो टूटा हुआ है। ये कौन गधा कहता है कि हम एक तरह के लोग हैं? हमारा खाना पीना अलग, हमारा जीना अलग, हमारी बस्ती अलग, हमारे घर अलग, हमारी गलियां अलग, हमारा गुजरना अलग, और हमारे जीवन के चज आचार वो भी अलग। जो मंदिर में हमें घुसने नहीं देता वो आदमी कहता कि हम देश को तोड़ रहे हैं, जबकि देश को उसने तोड़ रखा है। इसी देश में यहां संविधान लागू है, हमारा आदमी मंदिर, हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है।
हमें मंदिर से कुछ नहीं लेना है, मंदिर में हमारे लिए कुछ नहीं है। अरे मंदिर हो या कोई और जगह, हमारे लिए कहीं कुछ नहीं है। मगर मंदिर को हमारे लिए बैन किया गया, और आज भी हमारे बच्चों को, हमारी लड़कियों को, हमारी बहू बेटियों को, आदमी को मंदिर जाने के कारण मार दिया जाता है। ये देश कौन कहता कि ये देश एक है? देश का प्रधानमंत्री आज तक कोई दलित नहीं बना, कौन कहता कि देश एक है? देश तो तुमने तोड़ रखा है। अरे देश को तो तुमने तोड़ रखा है। और वो इल्जाम जो 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 माड़ा काम, जो बुराई, जो बदी ऊंचे लोगों ने कर रखी है, और उसकी कालख हमारे मुंह पर मलते हम भी समझते हैं। अब हम समझते हैं संविधान की बदौलत, लोकतंत्र की बदौलत, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत, हमारे पुरखों के संविधान जो संघर्ष की बदौलत आज हम समझने लगे हैं कि सच्चाई क्या है। देश तो पहले अफगानिस्तान भी हमारा था, वो भी टूट गया। ये भूटान भी हमारा था, ये लंका भी हमारा था, बर्मा भी हमारा था, नेपाल भी हमारा था, पाकिस्तान भी हमारा था। देश तोड़ने वाले कह रहे हैं कि देश तोड़ रहे हो। देश तो 6 बार टूटा है। देश तो, भारत तो 6 बार टूटा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 2 तारीख का, 2 अप्रैल का इतिहास भारत में बिल्कुल अलग किस्म का इतिहास है। इस इतिहास को दुनिया ने देखा है, पूरे भारत ने देखा है। काबज जातियों ने नहीं देखा, जो नीचे अत्याचार सहन कर रहे लोग हैं उन्होंने भी देखा है। शासन और प्रशासन ने देखा है। पिछले 70 वर्ष में कभी देश बंद नहीं हुआ, कभी कोई पार्टी देश को बंद नहीं कर सकी। अगर दलितों ने ही बंद का सद्दा दिया, बहुजनों ने ही देश को बंद का सद्दा दिया, तो पूरे देश का बहुजन सड़कों पर निकला, और कन्याकुमारी से लेकर हिमाचल तक, गुजरात तक, पोरबंदर तक और बंगाल तक पूरा देश बंद रहा। इसको छोटा करके मत देखना, छोटा करके मत देखना। और जो समझदार लोग हैं, सियाने लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, लोगों से प्यार करते हैं, नफरत नहीं करते, जाति की जहर को उठाकर नहीं चलते, आदमी इंसानियत और बराबरी को लेकर चलते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई उससे नीचे वाली जाति का आदमी हो। उन सभी को देश को, संविधान को, लोकतंत्र को और गणराज्य को बचाने की लड़ाई लड़नी है। और ये लड़ाई हिंसक नहीं होगी, क्योंकि हिंसा का अर्थ क्या है हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमने गुजरात में हिंसा देखी है, हमने दिल्ली में हिंसा देखी है, हमने बॉम्बे में हिंसा देखी है, अयोध्या में हिंसा देखी है, पंजाब में हिंसा देखी है, हरियाणा में हिंसा देखी है, बिहार की मुजफ्फरपुर की हिंसा देखी है। रोज टीवी पर हम देखते हैं कि हिंसा का क्या अर्थ होता है। जब जंगल को आग लगती है तो उसका क्या अर्थ होता है, ये समझते हैं।
अगर देश को, संविधान को, लोकतंत्र को, गणराज्य को बचाना है तो हिंसा नहीं करनी, मगर एकजुट होकर इतनी ताकत से खड़े होना है कि दुश्मन के हाथ पैर फूल जाए, उसका रंग बदल जाए और उसे समझ आ जाए कि देश उसकी मर्जी से नहीं चलने वाला। अब देश संविधान की मर्जी से चलेगा, लोकतंत्र की मर्जी से चलेगा और गणराज्य होकर चलेगा। ये भारत है, ये हिंदुस्तान नहीं है। मुसलमान भाई भी समझ लो कि ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये भारत है और भारत ही रहेगा। तो 2 अप्रैल को मैं जैसे देखा, जैसे महसूस किया, जैसे उसके पीछे मुझे शंकाएं भी खड़ी नजर आई, मगर देश के बहुजन ने जैसे इसको दिखाया, पूरे देश को बंद किया जैसे, और जैसे दिल की भड़ास निकाली, मगर हिंसा नहीं की। हिंसा करने वाले तो साफ नजर आते थे और वो अगर उन पर सही तरीके से जांच की जाए तो हजारों लोग पूरे देश में एक तरफ मिल जाएंगे जिन लोगों ने वो हिंसा की है। ये ठीक है कि जिनके हाथ में ताकत है उन्होंने पता नहीं कितने हजार केस दलितों पर दर्ज किए हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक पूरे देश के लोगों को ये नहीं पता था कि उनके वकील भी नीचे वाली कचहरी से लेकर ऊपर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक बैठे हैं। और 2 तारीख को बाद क्या हुआ है कि जितने वकील पूरे देश में दलित बहुजन के बैठे हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो दलित हैं, पिछड़े हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, कोई भी है, उन लोगों ने 70 साल में पहली बार ऐलान किया है कि वो देश की खातिर, संविधान की खातिर, लोकतंत्र की खातिर, गणराज्य की खातिर तो लड़ेंगे, मगर जिन लोगों पर ये हाकिम जातियां अत्याचार करती हुई उनको पकड़ने की कोशिश करेंगी तो उनको छुड़ाने का काम भी किया जाएगा। और उन्होंने किया, ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं वो भाई, क्या नाम उनका, गुटकेला कुछ ऐसा नाम है, हमारे छोटे भाई का, हम कई बार स्टेज पर भी दोनों दूसरे साथियों के साथ इकट्ठे बैठे हैं। मैंने उसको सुना भी है, देखा भी है पास बैठकर। तो उस आदमी ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है। डॉक्टर प्रदीप है, एडवोकेट, वो भी बड़ी जंग लड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं और वो ये कहकर लड़ते हैं कि उनका लेना देना देश के मजलूमों का है, उनके साथ है। जो अत्याचार के शिकार है उन लोगों के साथ खड़े हैं वो। और अभी वो हमारे वकील साथी कह रहे थे कि उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम जो अत्याचार के शिकार लोग हैं उनकी तरफ से लड़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये 2 तारीख के बाद आई बात। तो जैसा मैंने समझा 2 तारीख को, 2 अप्रैल को, और एक बात और मेरे दिमाग में जो मैं साझी कर लेना चाहता हूं कि अप्रैल का महीना जो है इसको अप्रैल फूल से शुरू किया जाता है, जैसे मूर्खों का महीना हो ये। मगर मैं ये बता देना चाहता हूं
कि यही अप्रैल, जिसको हिंदी में विशाख कहते हैं, इसी विशाखा में दुनिया के सबसे सियाणे आदमी तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और इसी माह में, विशाख में, तथागत गौतम को ज्ञान हुआ। और इसी विशाख में तथागत ने 5 भिक्षुओं को अपना ज्ञान बांटा और फिर इनकलाब हुआ। यही वो माह है विशाख का, जिसमें भारत के बहुत महान सपूत गुरु नानक का जन्म हुआ। ये लोग नहीं जानते, अभी अभी समझ लेना चाहिए। और यही वो विशाख है, अप्रैल का महीना है, जब भारत में तथागत गौतम बुद्ध की क्रांति के बाद सिख क्रांति हुई। तो 1699 की विशाखी में खालसा की साजना, खालसा का अर्थ होता है जातिवाद, वंशवाद, कुलवाद और ब्राह्मणवाद से मुक्त, ये खालसा का अर्थ है। अगर सिख नहीं बताते तो मेरे से सुन लो कि खालसा का अर्थ कृपाणधारी आदमी नहीं केवल, वो तो एक बहादुर आदमी पैदा किया गया दलितों में से, जो हथियारों का भी मालिक बना। मगर खालसा का जो गुरबाणी में अर्थ है, वो खालस का अर्थ है ब्राह्मणवाद से मुक्त, जातिवाद से मुक्त, वंशवाद से मुक्त, राम कृष्ण की और गंगा जमुना की जितनी भी फिलॉसफी है, जिसका विचारधारा है जो ब्राह्मण की, उससे भी मुक्त। ये मैंने अपने शब्द नहीं बोले, ये मैंने गुरु गोविंद सिंह के शब्द बोले हैं, जो भाषण उन्होंने 13 अप्रैल को 1699 को दिया। उस भाषण का अंश है जो मैं बोल रहा हूं कि आज से बाद खालसा कभी ब्राह्मण की रीत नहीं करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्राह्मण की रीत करेगा वो मेरा खालसा नहीं होगा, ये लिखा हुआ उसने। और इसके बाद में एक और बात आपको बता दूं कि उसी भाषण में जो 13 तारीख को 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने दिया, और मेरी पुस्तक में वो दर्ज है, और वो सीआईडी जो औरंगजेब की सीआईडी है उसने नोट किया था। और वहां कहा गया कि तुम राम और कृष्ण को, विष्णु को, गणेश को, शिव को, किसी को नहीं मानोगे, तुम गंगा और जमुना को नहीं मानोगे, तुम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करोगे, तुम्हारा आज से वंश खत्म, तुम्हारी नस्ल खत्म, तुम्हारा वर्ण खत्म, तुम्हारी जात खत्म, तुम एक ही इंसान वर्ण के लोग हो, तुम सिर्फ आदमी हो, और आदमी के अलावा तुम्हारा कोई कुल वंश नहीं है। और जो आदमी मेरे सिद्धांत पर नहीं चलेगा, ब्राह्मण की रीत करेगा, वो मेरा खालसा नहीं कहाएगा। ये गुरु जी के लिखे हुए शब्द मैंने बोले हैं। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को, देश को या देश के दूसरे लोगों को इस सच्चाई का पता नहीं कि 13 तारीख को, 13 अप्रैल को जिस खालसे का जन्म हुआ वो ब्राह्मणवाद से, जातिवाद से, नस्लवाद से, रंग भेद से पूरी तरह मुक्त आदमी का नाम है। ये खालसा केवल देखने को नहीं है, खालसा का अर्थ दूसरा भी ले लो, ये सेना है अकाल पुरख की। इसका मतलब है कि नीच से नीच आदमी जो पैदा किया गया जातिवाद से, उस आदमी को 13 तारीख को
कोई भी हथियार उठाने और पहनने का अधिकार दिया गया। ये सबसे बड़ी बात है कि अब तुम जियोगे और अपने बल पर जियोगे। अब तुम किसी के अत्याचार सहन नहीं करोगे। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि तलवार का नाम बदल दिया गुरुजी ने 13 की वैसाखी को। जो तलवार चलती आ रही थी और आज भी चलती है, गुरुजी ने 13 अप्रैल को इसका नाम बदल दिया और इसका नाम कृपान रखा। कृपान का अर्थ होता है दयावान, काइंडफुल, जो रहम करती है, दया करती है, रहीम और करीम, जो बूढ़े पर नहीं चलेगी, जो किसी औरत पर नहीं चलेगी, जो किसी बच्चे बच्ची पर नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो सिर्फ जुल्म के खिलाफ, दुश्मन के हाथ देखने के लिए चलेगी। ये है इसका अर्थ कृपान का। ये अर्थ किया हुआ है कृपा, दया, काइंडनेस। ये तलवार नहीं है। ये ठीक है, सिख लोगों ने जानबूझकर ये अर्थ नहीं किया। ये मुझे दुख है इस बात का कि सिख लोगों ने जानबूझकर इसका अर्थ सही नहीं किया। जिसने किया उसने सिखों को बताया, पूरे देश को नहीं बताया। तो मैं कह रहा था कि ये अप्रैल का महीना, जिसको अप्रैल फूल से जाना जाता है, यही वो महीना है जब तथागत बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। यही वो महीना है जब संसार में एक बहुत बुद्धिमान मनुष्य गुरु नानक का जन्म हुआ। यही वो महीना है जब खालसा का जन्म हुआ। और यही वो महीना है जब देश को विद्या देने वाला ज्योतिराव फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले, हमारे दादा साहब का जन्म हुआ इसी महीने में। और यही वो महीना है जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ। अरे इतने संसार के इतने बड़े आदमियों का जिस एक ही महीने में जन्म हो, तुम उसको अप्रैल फूल कहते हो। तो फूल तो है ही हम फिर। अरे हम फूल हैं, हम मूर्ख लोग हैं, हम गधे लोग हैं। हमने अपने बुजुर्गों को नहीं पहचाना। हमने अपने बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने विप्र की रीत की, देवी देवताओं को पूजा, हमने मंदिर जाने की जिद की, हमने ब्राह्मण जो हमें देखना भी पसंद नहीं करता, उसके पांव छूने की कोशिश की। इतने बड़े मूर्ख कि जिस ब्राह्मण ने हमारा परछाया लेने की, यानी हमारा परछाया भी उसको सबसे बुरा लगता है, तो हमने उसके पांव छूने की जिद की। इतने बड़े मूर्ख लोग हैं हम। तो इसी महीने में 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल को भारत के दलित बहुजन ने पूरा भारत बंद किया कि अब अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, गणराज्य को बचाएंगे और खुद को भी बचाएंगे। ये 2 अप्रैल का संदेश है जो आज मैं जिसकी व्याख्या कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि मेरे भाई, मेरे बहन भाई सभी समझने की कोशिश करेंगे। और मैंने जो पंजाबी में बोला है वो इसी संदर्भ में यही बात कह रहा था। मैं पहले 10 मिनट में पंजाबी में बोला
तो बाद में मुझे याद आया कि मुझे तो देश से बात करनी है। तो पंजाबी एक एक जो 10 मिनट का कॉल है वो मैंने पंजाबी में बोला, और यही बोला जो मैंने बाद में हिंदी में बोला, उसमें भी यही बोला। और कुछ लोग कोशिश करेंगे कि उस 10 मिनट को भी हिंदी में इसमें जोड़ दिया जाए। अगर कोई हमारा साथी ये यत्न करे तो 10 मिनट का जो मेरी बात है उसको हिंदी में करके इसमें जोड़ते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि 2 अप्रैल भारत का बहुत बड़ा इतिहास है, दलित बहुजन का बहुत बड़ा इतिहास है, भारतीय संविधान का और लोकतंत्र का बहुत बड़ा इतिहास है। इसको मरने मत देना, इसको भूलना मत, इसको जिंदा रखना, इसको चलते रखना। ये हम सभी की जरूरत है, उन सभी लोगों की जरूरत है। जैसे जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब जम्मू कश्मीर में हमारी वो बच्ची आसिफा के साथ बहुत बुरा हुआ, जितना बुरा हो सकता उतना बुरा हुआ, और करने वाले भी मंदिर के लोग। ये मंदिर के लोग जिन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ दुष्कर्म किया, तो उनको बचाने के लिए लोग काले कोट पहनकर या दूसरे लोग तिरंगा लेकर खड़े हो गए। देखो देखो, अजीब कि ऐसे लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग तिरंगा लेकर और काले कोट पहनकर खड़े हो गए। और अभी मैं देख रहा हूं, मेरे मेरे अभी सामने है कि दुनिया के एक बहुत बड़ा इकट्ठ बैठा है बुद्धिमानों का, एक सभा बनी हुई है। उसमें उसका जो मुखी है, जो संचालक है, वो जब कहता है कि देश में, भारत में 10,000 बच्चे बच्चियों और बूढ़ियों के साथ बलात्कार होते हैं, तो वो रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है। एक तरफ वो आदमी है जो फूट फूट कर रोने लगता है और पूरी मजलिस उठ के खड़ी हो जाती है और उसके साथ उसके दुख में शामिल होती है। और दूसरी तरफ हमारा आदमी तिरंगा लेकर, काला कोट पहनकर बलात्कारियों को बचाने के लिए नारे लगाता है। और जो बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी संदर्भ में वो लड़की, हमारी एक वकील, जिसको फाइल करने के लिए, केस फाइल करने के लिए जाने तक नहीं दिया, वो बहादुर लड़की, वो छोटी जाति की नहीं है, जो वो बड़ी जाति में पैदा हुई है। उस लड़की ने अपनी जान जोखिम में डालकर आसिफा का केस लड़ने का फैसला किया है। और उसने कहा है कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मुझे जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। अरे ऐसी बहादुर लड़कियां, ऐसे बहादुर लोग, ऐसे दलित बहुजन, ऐसे मुसलमान, ब्राह्मण या दूसरी जाति के और लोग, छोटी जाति और बड़ी के लोग जाति के, जब देश के हित में, संविधान के हित में, लोकतंत्र के हित में, गणराज के हित में खड़े हो जाएंगे, जब लोगों के हित में खड़े हो जाएंगे, तो देश को कोई हाथ तक नहीं लगा सकेगा, देश की हवा को हाथ नहीं लगा सकेगा कोई। अभी हमें 2 अप्रैल का ये संदेश समझना है कि 2 अप्रैल को यही संदेश दिया है देश के दलित बहुजन ने कि उठो, देश को बचाओ, संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, गणराज को बचाओ और अपने आप को बचाओ, खुद को बचाओ, नरक से जाने से बचाओ। तो ये था 2 अप्रैल का संदेश, जिसके बारे में मैंने चर्चा की
और मुझे लगता है कि शायद आप इसे सुनेंगे और महसूस भी करेंगे। इतनी बात कहते हुए बहुत दिनों के बाद मैं बोला, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी इस पर चर्चा करोगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।